सभी देख रहे हैं बिजनेस मॉर्निंग और अब वक्त हो चला है इकॉनमी टुडे का। और इकॉनमी टुडे सेगमेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा आर्थिक मुद्दा है उसको उठाते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए आज का मुद्दा है ऊर्जा गंगा परियोजना। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और इस कार्यक्रम का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, #इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए। आज का सवाल ऊर्जा गंगा परियोजना से जुड़ा होना चाहिए। और मेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, जो कि एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकॉनमी टुडे की। All right, so up next, in the half an hour, we'll have a discussion on the Urja Ganga project. How important is it? We've always seen the Prime Minister talk of inclusiveness of all sections of society. How far will it help in bringing including the weaker sections of the society into the mainstream? We'll have a discussion on that as well. To give you more on that, first we'll take a look at what actually this project is. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of highly ambitious gas pipeline project Urja Ganga in Varanasi. The gas pipeline project aims to provide piped cooking gas to residents of Varanasi within 2 years. After that, it will cater to millions of people in states like Bihar, Jharkhand, West Bengal and Odisha. From Varanasi's perspective, an 800-kilometer long MDPI pipeline will be laid and 50,000 households and 20,000 vehicles will get PNG and CNG gas respectively. The government estimates that around 5 lakh gas cylinders will be sent at rural areas annually. With the Urja Ganga project, 20 lakh households will get PNG connections. The project is said to be a major step towards collective growth and development of the eastern region of India. GAIL has built a network of trunk pipelines covering the length of around 11,000 kilometers. With Urja Ganga project, this number will further increase by 2,540 kilometers. 7 East India cities, Varanasi, Patna, Jamshedpur, Kolkata, Ranchi, Bhubaneswar, Cuttack will be the major beneficiary of this network development. The government is estimated to invest rupees 2,490 crore for the development of 2,540 kilometer long natural gas pipeline project in Eastern India region. 500 regions including 40 districts and 2,600 villages will benefit from this project. Bureau Report, DD News. To discuss more on this, we have Mr. Bhattacharya with us. Sir, we've seen the Prime Minister time and again has talked of how the development and progress of the eastern part of the country is important for the overall development of the nation. How far will this project help in the infrastructure development of the region? Okay, I mean, it's a very important point that you have raised. There are two parts to this Urja Ganga program. One part is the delivery of piped natural gas to over 2 million households in this region, the eastern India. The 7 cities that you anchor just now mentioned, which is you have Varanasi, Patna, Ranchi, Jamshedpur, Cuttack, Bhubaneswar and Calcutta. Now, the larger benefit probably would be the building of the pipeline, which is one of the longest pipeline, and if I'm not mistaken, it will be as long and actually longer than the celebrated HBJ gas pipeline that was built in the 1980s. So it will probably mark the launch of the country's longest pipeline network to be built over a period of the next maybe 7 years or so. So in terms of infrastructure building, its contribution and its role will be immense. And in terms of delivery of piped natural gas, which as we all know reduces pollution, improves the ease of living in your own house and doing your own cooking without any harm to your own health or to your neighbor's health. So I think in all it's an ideal combination of infrastructure building and using that infrastructure building objective
to provide greater benefits to 2 million families in that region, which we all know is one of the backward regions of this country. सर ये ऊर्जा गंगा जो परियोजना है सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ देखने को मिल रही हैं। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उस पाइपलाइन के ज़रिए जो हाईवे पे जो गाड़ियाँ चलेंगी उसमें सीएनजी की सप्लाई होगी। घरों के लिए पाइप नेचुरल गैस, यानी घर में खाना पकाने के जो गैस है उसको मिलेगा। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी फ्यूल की सप्लाई होगी। तो एक तरह से ये काफ़ी सोची समझी स्कीम है जिसको अभी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पूरे प्रोजेक्ट पे कहा जा रहा है कि 50,000-51,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या उसमें कोई समस्या है या फिर? मुझे तो ये नहीं लग रहा कि 51,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कॉस्ट उन्होंने एस्टिमेट किया है। और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जो उत्तरदायित्व दी गई है वो है गेल के ऊपर। गेल एक पब्लिक सेक्टर संस्था है पर इसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि आप जिसे कह रहे हैं कि पैसे की कमी होगी, इन्वेस्टमेंट्स के पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई शंका तो मुझे नहीं लगती है। और सरकार के पास, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जो ये इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो मेरे ख्याल से सरकार के पास है, गेल के पास है, टेक्नोलॉजी है, जगह की कोई ज़रूरत प्रॉब्लम नहीं है। पाइपलाइन बहुत कम जगह लेती है। ये एक इशू आएगी कि सिक्योरिटी ऑफ द पाइपलाइन, क्योंकि जो वो एरिया जो है वो एरिया कुछ एरिया सेफ़ नहीं है। अभी भी हम लोग ये मानते हैं कि जो नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरिया से पास करेगी पाइपलाइन, तो वो सेफ्टी को देखना पड़ेगा, जिससे कि पाइपलाइन विल बी अनदर टारगेट ऑफ अटैक बाय दोज हु वांट टू डिसरप्ट द इकोनॉमी। तो वो एक कैन बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी कोई डाउट्स की बात नहीं है। ये है कि जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं डिलेस हो सकती हैं। तो अगर डिले होगी तो मुझे लगता है कि जो टारगेट डेट दिया गया है वो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव डेट है, क्योंकि अगर हमारी नेक्स्ट इलेक्शंस 2019 में हो और इनकी टारगेट डेट उसी के आसपास है, तो मेरे ख्याल से जो डिले होगी, अगर देर हो जाए इस प्रोजेक्ट में, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिस्क है इसमें, पर इकोनॉमिक रिस्क तो मुझे लगता नहीं है कोई है। All right, you're talking about the political risk. Now, the government also wants that each household be connected with LPG. And indeed, how far will this help in, taking forward this thought, taking forward this ambition of the Prime Minister? It's I see this scheme in line with the Prime Minister's earlier scheme on Ujjwala. The Ujjwala scheme was essentially providing subsidized LPG gas cylinders to the people below the poverty line. So that was a 5-year long scheme, and that has already been launched, and I understand that it has made some headway. And this one is not just restricted to the BPL families, but it is going to the different sections of society which can pay for it. And and PNG is something that is a clean fuel, so it does not necessarily impact the people who are below the poverty line, but it certainly helps the smaller towns, the middle class people. So if you are looking at the political message of it, I think energy is now being sought to be used to not just provide their benefits to the below the poverty level people, but also to the Aam Aadmi or the middle class. Okay. ये सही कहा आपने, और ऐसा लग रहा है कि इस परियोजना के जरिए गेल को भी अब लग रहा है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है उतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो कस्टमर बेस है मिडिल क्लास का वो उनको मिल पाएगा, और जो सीएनजी के लिए जो गाड़ियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही हैं जिनकी डिमांड वहाँ हो पाएगी। कि आइए देखते हैं इस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम में पहला ट्वीट के ज़रिए क्या जानना चाहते हैं हमारे दर्शक, और
ये सवाल स्टेट गवर्नमेंट्स के रोल को लेकर के, व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज। विजय चंदेल जी जानना चाहते हैं, क्लीन एनर्जी एज अ सब्जेक्ट सर किसकी जिम्मेदारी बनती है और क्या स्टेट्स को आगे आना चाहिए और प्रोएक्टिवली? ज़रूर स्टेट्स को ज़्यादा आना चाहिए। सवाल एकदम लॉजिकल सवाल है। स्टेट्स अभी तक ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं दिखा रही हैं। मेरे ख्याल से स्टेट्स देखिए हमारे देश में की जो एक फिस्कल फ्रेमवर्क जो है चले आ रही है, और 14 फाइनेंस कमीशन के बाद स्टेट्स ये कह रही हैं कि हमें ज़्यादा पैसा तो मिल गया है, 42% डेवोल्यूशन आ गया है, पर जीएसटी भी आ रहा है, उसमें मुझे जो टैक्स करने की जो फ्रीडम है वो नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास पैसे कहाँ बचे मेरे पास? तो स्टेट्स को हर चीज़ करने के लिए अब इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई इंसेंटिव प्रोग्राम चालू करें जिससे कि स्टेट्स इनकरेज्ड हों कि क्लीन एनर्जी यूज़ करने की, उसमें उनकी एक इंसेंटिव रहे, ज़्यादा आगे बढ़ सकती है बात। पर ये सवाल एकदम सही है कि स्टेट्स ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं दिखा रही हैं। हालांकि स्टेट्स गवर्नमेंट्स अगर इम्प्लीमेंट करते हैं उनको काफ़ी पॉलिटिकल फ़ायदा भी उनको ही मिलेगा। देखिए सर, एज ए सब्जेक्ट ये जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा है? अगर आप क्लीन एनर्जी पे फोकस करना चाहते हैं तो इज़ इट इन द कंकरेंट सब्जेक्ट या ये जिम्मेदारी? एनर्जी जो सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है, तो बट एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन इज नॉट इन द सेंट्रल लिस्ट। बहुत सारे इसमें तो दोनों चीज़ मिला के हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो इश्यूज जो हैं वो सेंट्रल स्टेट, अगर इंटर स्टेट काउंसिल है या नीति आयोग की जो कमिटीज़ जो हैं स्टेट एंड सेंटर की, वो अगर ऐसे इश्यूज़ को सेटल करें, मुझे लगता है कि बट इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्टेट्स अभी तक कोई इनिशिएटिव ज़्यादा दिखाए नहीं है। बेनिफिट स्टेट्स को मिलेंगी, पर मुझे लगता है कि कॉमन गुड जो है, कॉमन गुड के लिए मेरे ख्याल से सेंटर को इनिशिएटिव दिखाना अच्छी बात है, और दे मस्ट लीड द शो। Cooperation with cooperation is from the states. crux word here. We'll continue the discussion. You're watching Economy Today. At present, we're heading for a short commercial break. Stay with us. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back after the break. You're watching Economy Today. Today in Economy Today, we're discussing Urja Ganga project and how far will it have a positive bearing. Now, we'll also have this tweet which has been coming in from Ramesh Maurya. Ramesh Maurya has put forth a question wherein he is asking about how that's in Hindi, PNG और CNG के लिए भारत कितना आत्मनिर्भर है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रणनीति क्या हो? This is indeed a step forward to what we just discussed before heading for the break. देखिए, the issue here is not whether we have internally, domestically
Right now, given the demand, we have the necessary resources, but this issue has lost some of its relevance because of the global gas prices. Global gas prices continue to remain very low. So securing supplies of gas at reasonable prices is not an issue. There is actually the demand for more gas is coming more from developing countries led by India. So I don't think availability or its cost are going to be an issue. The challenge is how to make sure that those available gas supplies, they are channeled to people who want to consume them, and you need to create the infrastructure, so which is what is being done. So to answer this question, I don't think either the availability or the cost or the price of gas is actually a relevant issue here. The bigger challenge here is how to create that infrastructure by which we can make it available to people who can use it, or the vehicles can use it for the gas, the cooking and everything. So that's the real challenge, not the availability or the price. So, लेकिन जो दूसरा सवाल था, जो दूसरा हिस्सा था सवाल का, वो ये कि जो क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. मान लीजिए दिल्ली में मुझे सीएनजी पंप्स आसानी से, बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में आसानी से मिल जाते हैं, और यहाँ भी बहुत उम्मीद है या फिर एक तरह से स्कोप है. जो दूसरे स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं अपने यहाँ सीएनजी को प्रमोट करने के लिए? क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज अ कॉर्पोरेट लेवल ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि मतलब उसके लिए स्ट्रेटजी सही क्या है? ये सही इंटरेस्टिंग सवाल है ये. अभी तक क्या हो रहा है कि जो अगर आप व्हीकल की बात कर रहे हैं, सीएनजी की बात कर रहे हैं, अभी भी जो गाड़ियाँ बन रही हैं हमारे देश में, वो कंपनी की जो गाड़ी आती है वो सीएनजी किट लगा के संख्या में, मात्रा में कम आती बहुत कम है. वो आपको बाहर से फिट कराना पड़ता है सीएनजी को. और अभी भी एक रिलैक्टेंस है लोगों में कि जब सीएनजी लगाएंगे तो जरा कतार बढ़ जाएगी, जरा सेफ नहीं हो सकती है. और पेट्रोल का चीज़ है, वो नोज़ल लेते हैं, वो डाल देते हैं पेट्रोल, और वो सीएनजी लेने का जो तरीका जो है उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं. तो मुझे लगता है कि ये प्राइस का इशू नहीं है. ये इशू है अवेलेबिलिटी और जो पंप स्टेशन जो हैं उनकी है. और जो प्राइसिंग मेरे ख्याल से अभी जो दाम काफ़ी कम है, पर दाम काफ़ी कम होने के बावजूद मुझे लगता है कि लोगों का जो एक शिफ्टिंग होती है, जो चॉइस शिफ्ट जिसे कहते हैं, कि पेट्रोल और डीजल से आप सीएनजी चले जाएं, तो ज़्यादा नहीं हुआ है. इसका मतलब सीएनजी जिस तरह से आप गाड़ी में डालते हैं, जिस तरह से गाड़ी चलती है आपकी, उसमें एक कंज्यूमर जो एक कंफर्ट जो है, सर आप कह रहे हैं इनएफिशिएंसी है इस चीज़ में, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? अगर मान लीजिए केवल आईजीएल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो केवल वही पंप लगा सकता है, या फिर एचपीसीएल जो बीपीसीएल के साथ टाई अप करके वही अपने पंप लगाएगा, तो क्या इसमें और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को लाने की ज़रूरत है? क्यों अवेलेबिलिटी या एफिशिएंसी बढ़ाई नहीं जा सकती? हमारी जो पेट्रोल पंप खोलने की जो नीति जो है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है. एग्जैक्टली. एक अगर रिटेल कंपनी आप खोलना चाहते हैं तो 1000 करोड़ की एक पूंजी लानी पड़ेगी आपको. तो जब सरकार ने नीति बनाई थी उसे काफ़ी कारण थे उसके, कि अगर आप ऐसे कोई इंसान को, ऐसे कोई छोटी कंपनी को अलाउ कर दें, ये एनर्जी है, सेफ्टी इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन्होंने बड़ी 1000 करोड़ की मिनिमम एक इक्विटी रखी उन्होंने. तो मुझे तो लगता नहीं है कि इस नीति की कोई रिव्यू की ज़रूरत है. पर मेरे ख्याल से अगर सीएनजी हम चाहते हैं कि एक क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकें, तो मेरे ख्याल से जो इंसेंटिव फॉर ओपनिंग न्यू सीएनजी सप्लाई सेंटर्स, उसमें नीति के परिवर्तन की ज़रूरत है. कि जैसे कि मान लीजिए हमारे दिल्ली के शहर की बात कर रहे हैं आप, दिल्ली शहर में मेरे ख्याल से 1/4
जो पेट्रोल पंप है उसके पास CNG नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ये रेशियो 1/4 से अगर आप 1/3 कर दें, मेरे ख्याल से इसका एक काफ़ी इम्पैक्ट दिल्ली की जैसे शहर में होगा, और बाहर में तो ये रेशियो मेरे ख्याल से और भी कम है। तो कई से इसमें तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका एक अगर इंसेंटिव करें कि पेट्रोल पंप को कहें कि अगर आप CNG का एक पंप लगाते हैं तो आपको हम ये इंसेंटिव देंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप और प्राइवेट सेक्टर कंपनी को बोलें कि आइए आप CNG स्टेशन खोलें, उससे मेरे ख्याल से रिस्क बढ़ सकती है। इंस्टेड जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है हमारे पास देश में, पेट्रोल पंप की कमी नहीं है, कमी है CNG स्टेशन उन्हीं पेट्रोल पंप में। तो मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके CNG स्टेशन खोलने की वहीं पे, वो एक नीति का एक परिवर्तन होने से मेरे ख्याल से कुछ तो इम्पैक्ट होगा। All right. We also have another tweet coming in wherein this person has talked of how this will help and benefit other region, rural area. This project will help the other rural areas apart from Patna in Bihar. The scope? We have to understand that this is not just restricted to these 7 cities. There is something called a pipeline. There is something called and which will not necessarily go into the 7 cities. जो आपकी जो एक जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी के अंदर काफ़ी अलग छोटे छोटे शहर आएंगी, उसमें स्पर लाइन्स आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये टू assume that it is only benefiting these 7 cities, it will be wrong. They will have a spin-off benefits for many small towns or small even village complexes which are coming in the way of that pipeline. So it is possible that maybe to start with these 7 cities will benefit, but their benefits will not remain restricted to only these 7 cities over a period of time. As we have seen in the HBJ gas pipeline project, that there are many small centers which has come up closer to the pipeline and you can provide that supply. So I don't think it would be wrong to say that it is only restricted to these 7 cities. एनर्जाइजिंग ईस्टर्न इंडिया इसकी एक तरह से थीम है इस पूरे प्रोजेक्ट की, और जो गोरखपुर जैसे ज़िलों में जो फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स हैं सर, क्या उनको भी फ्यूल सप्लाई में मदद मिलेगी इसके? एकदम आई एम ग्लैड आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि हमारे उस रीजन में काफ़ी फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद पड़े हैं, उनके पास गैस नहीं है। तो ये पाइपलाइन के ज़रिए से, और पाइपलाइन जैसे आप जानते हैं कि पाइपलाइन एक बहुत इजी, वो जिस तरह से पाइपलाइन सप्लाई करती है वो भी एक क्लीन एनर्जी से, क्योंकि अगर आप नॉर्मली आज जो गैस सप्लाई करते हैं वो ट्रक में लाते हैं या इंजन में लाते हैं, ट्रेन में लाते हैं, उसमें भी वो कंज्यूमिंग एनर्जी। पर पाइपलाइन जो है आपका, पाइपलाइन इज कमिंग थ्रू ए पाइपलाइन, सो देयर इज नो एनर्जी बीइंग यूज्ड टू कैरी एनर्जी। सो मुझे लगता है कि सारी जो इंटायर वो जो गोरखपुर, सिंदरी, ऑल दोज इंटायर रीजन, ईस्टर्न रीजन के जो 3-4 ऐसे फर्टिलाइजर प्लांट जो इस वक्त क्लोज हैं वो मॉडर्नाइज हो सकते हैं। मॉडर्नाइज होने के बाद आपके उसी फर्टिलाइज़र प्लांट्स को हम रिवाइव कर सकेंगे। राइट नाउ हम हमारे देश में काफ़ी फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स होती हैं, तो मेरे ख्याल से इंपोर्ट्स का जो कमी होना उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार भट्टाचार्य जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सवाल लेने के लिए। द इकॉनमी टुडे के आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन कल इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन बिल की, और रियल एस्टेट की दुनिया जैसा कि आपको पता है कि आज से बदलने जा रही है। ये जो बिल है, ये जो अधिनियम है वो आज से इफेक्ट में आ गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आप समझना चाहते हैं तो कल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी प्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।